Hello everyone, welcome to our channel Brighter World. Today we are going to start new chapter. In past 3 videos we have completed our 9th grade NCERT first chapter number system. I hope you better understand by these videos, and now we are going to start new chapter 2nd of NCERT book for grade 9, that is polynomial. Okay, now topics are introduction. What is polynomial means that polynomial in one variable, zeros of polynomial, remainder theorem, factorization of polynomial, algebraic identities. Now in this video we are going to discuss 2-3 topics, and within 3 videos we will complete this chapter. Okay, now let's start. Some example introduction about this chapter. Now see what is polynomial. First of all, polynomial क्या होता है? Polynomial is a combination of, polynomial is just like a expression, okay, equation, expression is a combination of alphabet and constant, just like this one you can see 2x plus 5. Alphabets are there, constant are there. Alphabets means A to Z, A, B, C, D. Constant means all numbers. Okay, alphabet means A to Z, that called variable in mathematics language. Okay, constant means counting 0, 1, 2, 3, 4 like. Okay, the combination of alphabet and constant called expression or equation. Expression or equation. ओके, एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ और है इसमें कि इसको देखेंगे और इसे देखेंगे, ये 2 है इस कंडीशन में जो 2 है, एंड देन इस कंडीशन में जो 5 है तो दोनों काउंटिंग्स, बट पोजीशन आर चेंज, नेम्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू पोजीशन. व्हाट इज़ दैट? सी, दिस इज व्हेन a number and a alphabet come together. एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट साथ में आते हैं तो ये तो आपका वेरिएबल कहलाएगा, और इस वेरिएबल के साथ जो अल्फ़ाबेट होगा वो इस कंडीशन में कोफिशिएंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट. और अगर कोई नंबर सिंगल आया है, अकेले आया है, ठीक है, तब वो कांस्टेंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? देन वी कैन कॉल इट कांस्टेंट. और अगर अल्फ़ाबेट के साथ आया है तो उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं. जस्ट लाइक 6x plus 7. Now here this is variable, this is coefficient, okay, and this is constant, because 6 comes with alphabet and 7 is individual. Clear one? So what is polynomial? Polynomial is expression of combination of alphabet and constant. Okay, नेक्स्ट, जस्ट लाइक अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं. तो अलजेब्रिक टर्म्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स. ओके, सम एग्जाम्पल्स आर देयर. 2x plus 5, 3x square plus 4x square plus 7 कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. अब ये क्या है? See, look here. I'm write some example. 6x plus 7y plus 5. 6x plus 7. 6x square plus 7x plus 5. Number 1 equation, number 2 equation, expression. Okay. In this expression, we can see 2 types of alphabet we are using, x and y. 2 types of alphabet. So this equation we call polynomial in 2 variable. कितने वेरिएबल? जितने टाइप के वेरिएबल आएंगे उसे polynomial in
नंबर्स के साथ वेरिएबल इक्वेशन नाम दिया जाएगा, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. ओके, एंड इफ in this equation, in next equation, see, equation in only one type of variable containing one type of variable, 6x square 7x, दोनों साइड x आ रहा है, नंबर्स भले अलग हैं बट x दोनों साइड x है, एक ही टाइप का वेरिएबल है, देन वी कैन से दैट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, इट इज़ क्लियर. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मीन्स अगर सारे एक्सप्रेशन में वन टाइप का ही पॉलिनोमियल आता है, अगर दूसरे टाइप का होता है तो जितने टाइप के होंगे वो उतने टाइप का वेरिएबल हो जाएगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ऑल नंबर्स लाइक, जितने भी आपकी काउंटिंग, जितने भी नंबर्स अगर अकेले आते हैं, जैसे हमने 2x+7 लिखा था तो यहाँ 7 की बात हो रही है, 7 5 जितने भी वट एवर प्लस माइनस नंबर जितने होते हैं जिसमें जिनके साथ कोई भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं होता है, एक्सप्रेशन में वेरिएबल इंक्लूड नहीं होता है, इसमें मैंने खाली लिखा 5, दिस इज़ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, बट वी विल से इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि खाली कांस्टेंट आ रहा है तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ओनली ऑन कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, जहाँ पर केवल नंबर ही आएगा पॉलिनोमियल के तौर पर, और वहाँ पे उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं. पॉलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें वन टर्म होता है, जैसे जस्ट लाइक 6x, जस्ट लाइक 5 होगा तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट एक ही टर्म है तो ये किसी और नाम से भी जाना जाएगा, जैसे 6x 7x. ओके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सिंगल टर्म जो हैं, सारे सिंगल टर्म वाले क्या कहलाएंगे आपके, सारे सिंगल टर्म वाले आपके कहलाएंगे मोनोमियल. ओके, मोनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में केवल वन टर्म होगा उसे मोनोमियल बोलते हैं. पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, जहाँ पे टू टर्म्स होते हैं, लाइक 2x+7 6x² + 5x, भाई ये अलग है, ये अलग है, वन टर्म टू टर्म, फर्स्ट सेकंड टू टर्म, तो इस टाइप को बोलते हैं बायनोमियल. क्या बोलते हैं, बायनोमियल. ओके, क्यों बोलते हैं इन्हें, क्या मतलब है, टू टर्म आने पर ही बायनोमियल क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न भी मैं आगे बताऊंगी, या वन टर्म आने पर ही मोनोमियल क्यों बोलते हैं उसका रीज़न भी पढ़ेंगे. अब पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, जहाँ पे थ्री टर्म्स होते हैं, जस्ट लाइक 2x² + 6x + 9, 1 2 3, एक पॉलिनोमियल में थ्री टर्म हो गए, दिस इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल. क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल. पॉलिनोमियल का जो नोमियल है वो सब में आएगा, आगे वाला नंबर नंबर्स के अकॉर्डिंग आएगा. ओके, वन टर्म वाले को मोनोमियल, टू टर्म वाले को बाइनोमियल, थ्री टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं. क्लियर वन. दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर कॉलिंग बाय मोनो बाय ट्राई. कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो अभी बोला हमने, जैसे जस्ट लाइक 5 ले लिया, ये कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ, दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल. ज़ीरो पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, देखेंगे. 5 अकेला 5 है, इसके साथ x की पावर हम ज़ीरो ले लें, भाई किसी की भी पावर अगर हम ज़ीरो ले लेते हैं उसका आंसर हमेशा 1 होता है. वी कैन टेक 5x⁻⁻, हम ले सकते हैं, तभी तो x⁻⁻ की वैल्यू 1 आ जाएगी और बचा आपका 5. ठीक है, तो जो पावर है वो ज़ीरो है, इसीलिए इसे हम ज़ीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ज़ीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं. डोंट बी कंफ्यूज देयर, 5 लिखा है तो हम इसे 5x⁻0 भी लिख सकते हैं, या किसी भी वेरिएबल के साथ उसकी पावर 0 दे के लिख सकते हैं. नो एनी डिफरेंस बिटवीन दैम. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल. क्या कहलाता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वन, अब मोनोमियल, वन टर्म में मोनोमियल आता है. मोनो मीन्स होता है 1, बाय मीन्स होता है 2, ट्राई मीन्स होता है 3. मोनो मीन्स होता है 1, इसलिए वन टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं. बाय मीन्स होता है 2, इसलिए टू टर्म वाले को बाइनोमियल बोलते हैं. और ट्राई मीन्स होता है 3, इसलिए थ्री टर्म वाले को
ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्लियर वन? नो डाउट शुड बी देयर। नेक्स्ट वन. Now new topic is what is degree of polynomial. Degree of polynomial refers to highest power of the variable. जो भी वेरिएबल होगा उसकी जितनी पूरे इक्वेशन में, जस्ट लाइक 6x प्लस 7, और सेकेंड लिखते हैं 2x स्क्वायर 2x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10. इस वेरिएबल में एक ही x है और x की केवल पावर 1 है, तो इसकी डिग्री, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा डिग्री ऑफ 1. दिस पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री. ओके, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखें, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में, तो हाईएस्ट यहाँ पे 1 है, पावर 2 है और हाईएस्ट पावर 3 है. नाउ डिग्री ऑफ 3. नाउ दिस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 वी विल से इट. ओके, सो इट इज सिंपल एज दैट. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री बन जाती है आपके पॉलिनोमियल की. अब कैसे नाम देते हैं इन्हें, लेट्स सी. लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी. ओके. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी. वेरिएबल 1 वाले को लीनियर पॉलिनोमियल, वेरिएबल 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वेरिएबल 3 वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे वेरिएबल पावर की बात हो रही है. पावर 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल. और अगर टर्म्स 1 है तो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं देन ट्राइनोमियल. क्लियर? नाउ गो फॉर नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, जस्ट लाइक हमने 5 बताया. अब 5 को हमने कैसे लिखा था? x टू द पावर 0. ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है तो इसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे. कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे? ज़ीरो पॉलिनोमियल. तभी बोलते हैं कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 0 होती है, क्योंकि x टू द पावर 0 होती है, ताकि ये 1 बना सके और खाली 5 रह सके. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, पॉलिनोमियल लाइक एग्जाम्पल है ये. ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट x टू द पावर कितनी दिखाई दे रही है? 3. सो वी कैन से दैट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 बिकॉज 3 इज़ द हाईएस्ट पावर. इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है क्योंकि इसकी पावर, हाईएस्ट पावर 3 है. 5 है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, भाई 5 है तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? x टू द पावर 0. तो डिग्री कितनी आ गई? 0. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? पावर ऑफ 0. मीन्स इसकी डिग्री 0 है क्योंकि इसकी पावर, एक वेरिएबल की पावर 0 है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, गोइंग टू एक्सरसाइज 2.1. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल. इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल में. ओके, एंड विच नॉट, और कौन सा नहीं है. स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर. फर्स्ट की बात करें, येस दिस इज़ अ कंप्लीट रियल एक्सप्रेशन. 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और दिस इज़ इन वन वेरिएबल क्योंकि एक ही टाइप का अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है. ओके, सो दिस इज़ एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल. ये है. सेकेंड की बात करें, वाई स्क्वायर अंडर रूट 2. सी हियर. नेक्स्ट है वाई स्क्वायर अंडर रूट 2, दिस वन. ओके, येस दिस इज़ ऑल्सो एक्सप्रेशन. अंडर रूट 2 जो है वो कांस्टेंट के साथ ही तो है. कांस्टेंट तो कैसा भी आ सकता है, और y की पावर हमारा स्क्वायर है. देन येस दिस एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और एक ही टाइप का वेरिएबल आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे वन वेरिएबल. ओके, नाउ थर्ड वन इज़ 3 रूट टी. सी इट वेरी केयरफुली. 3 रूट टी प्लस टी रूट 2. ओके, रूट में कुछ भी होता है इट मीन्स कि उसकी पावर हाफ होती है. कितनी होती है? हाफ. और किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए पावर हमेशा एक होल नंबर होना ज़रूरी है. होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4. नो एनी निगेटिव,
no any fraction, no any decimal, no any rational number. Only whole number power should be required for expression or polynomial. whole number power. अब जहाँ पे रूट वेरिएबल के साथ रूट लग गया, यानी इसकी पावर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3t⁻1/2 प्लस t√2, ओके। और जहाँ पे वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं है तो वो एक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा. वन वेरिएबल यू कैन से बिकॉज टी इज repeating, but this is not an expression due to power because power is not a whole number, okay. That's why we are saying that no, it can be observed that exponent of variable t or t to the power half is which is not a whole number or power whole number nahi hai, therefore this expression is not a polynomial, okay. Now next, y plus 2/y. अब आप यहाँ बोलेंगे यहाँ तो होल नंबर है, बट सी हियर y टू द पावर 1 प्लस जो चीज़ नीचे होती है उसको हम ऊपर ले आएँ तो उसकी पावर में साइन चेंज हो जाता है. जस्ट लाइक अगर x होता है x² है, रेसिप्रोकल अगर हम इसका कर दें तो पावर -2 हो जाएगी. जैसे हमने लास्ट पिछले उसमें पढ़ा था, पलट देते थे, उल्टा कर देते थे, रेसिप्रोकल कर देते तो पावर का साइन चेंज हो जाता था. ऐसे ही और अगर 1/y है उसको ऊपर y की पावर यहाँ पे 1 है ऊपर लेके आएंगे तो y टू द पावर -1 हो जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाएगा, लाइक दैट्स आई हैव रिटन दिस वन. y टू द पावर 1 प्लस y ऊपर चला गया तो पावर कितनी हो गई -1. अब -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, इट इज़ अ इंटीजर. दिस बाय दिस रीज़न वी कैन से दैट y की पावर -1 है, इट इज़ ऑल्सो नॉट द एक्सप्रेशन, इट इज़ नॉट ऑल्सो नॉट द पॉलिनोमियल. वन वेरिएबल होगा बट पॉलिनोमियल तो नहीं होगा ना, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज़ नॉट द पॉलिनोमियल, ओके. नाउ नेक्स्ट, सो फर्स्ट सेकंड है, थर्ड नहीं है, फोर्थ भी नहीं है. फिफ्थ की बात करें तो x टू द पावर 10, x टू द पावर 10, y टू द पावर 3, t टू द पावर 50. दिस इज़ द एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन इन पॉलिनोमियल है बट नॉट इन वन वेरिएबल, क्योंकि 3 टाइप के अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं इसलिए ये एक टाइप का पॉलिनोमियल, एक टाइप के वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है. मगर हमें तो सारी कंडीशंस फुलफ़िल करनी है. पॉलिनोमियल तो है बट इट इज़ नॉट इन वन वेरिएबल, इट इज़ ऑफ 3 वेरिएबल, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ओके. बट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ये नहीं है. क्लियर. Now next, question number second is write the coefficient of x². कोफिशेंट मैंने बताया था 2x, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर आएगा वो कोफिशेंट कहलाएगा. क्या बोला जाएगा, कोफिशेंट. और यहाँ पे हमें किसका कोफिशेंट बनाना है, स्पेशली बताना है x² का. फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं है तो आप ये नहीं बोलेंगे 0 है, अगर 0 होता तो ये तो होता ही नहीं x². कुछ नहीं का मतलब हमेशा किसी ना, अगर कुछ भी नहीं होता है किसी के साथ तो हमेशा वन अंडरस्टूड होता है. जैसे 2 है तो उसको 2 अपॉन डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं, अंडरस्टूड है, ठीक है. इसी कंडीशन में x² के साथ यहाँ पे अगर कुछ नहीं है दैट मीन्स इसका कोफिशेंट 1 है, ओके. तो कोफिशेंट इज़ 1. सेकेंड वाले में कोफिशेंट 1 है लेकिन उससे पहले माइनस भी है. कोफिशेंट जैसे 2 माइनस लिखते नहीं है 1 को बट होता है, इसका भी 1 होगा x³, तो -1 एक साथ आएगा, साइन भी आएगा उसका. नाउ हियर कोफिशेंट ऑफ x² इज -1, ओके. नाउ थर्ड वन, x² के साथ π/2 है तो कोफिशेंट इज π/2. नाउ इन नेक्स्ट x² के साथ क्या है, x². नेक्स्ट आप इसमें देखें तो √2x - 1, यहाँ पे तो x² ही नहीं है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, √2 लिख देते हैं. नो, x² का टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब ये 0 से मल्टीप्लाई हो रखा होगा. अगर हम इसको लिखें तो 0 × x² प्लस √2x -1, ओके. x² का टर्म ही नहीं है, केवल इतना है तो x² 0 के साथ आया होगा, ओके. तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कोफिशेंट ऑफ x² इज 0, ओके. कोफिशेंट ऑफ x² इज 0. क्लियर.
Now next, question number 3 is give one example each of the binomial of degree 35. एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होने चाहिए और डिग्री 35. चलिए कोई सा भी लिख देते हैं, 2x⁵ प्लस 7 हो गया एग्जाम्पल, कुछ भी ले सकते हैं आप. एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का जिसमें डिग्री 100 हो. ठीक, ले लीजिए पी, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, मैंने पी ले लिया p⁴ या 6p⁴, एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल का हो गया, ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया. यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है एग्जाम्पल 35 डिग्री का, आप ऐसे भी ले सकते हैं x⁵ प्लस x⁴. काउंट तो हाईएस्ट डिग्री होती है, तो ये हो सकता है. और सेकंड क्या लिया इन्होंने, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का एग्जाम्पल x⁴ ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर, this is the last question, this is the second last question of your exercise. Write the degree of the polynomial. चलिए, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर देखनी है आपको. ओके, हाईएस्ट पावर. इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्सप्रेशन इज 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x. हाईएस्ट पावर 3 है, मीन्स दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल की, मीन्स इट इज़ 3 डिग्री पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, y⁴ 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है और तो पावर है नहीं, मीन्स दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. नेक्स्ट, 5t माइनस √7, t की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 कहलाएगी, तो दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. ओके, एंड नेक्स्ट में 3 है, 3 खाली 3 का मतलब x⁴ होगा, तभी तो 3 × 1 = 3 बना, तो x⁴ और कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, या फिर इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0. तो दिस इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0. ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. अब लीनियर कब बोलते हैं, जब वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होती है, क्वाड्रेटिक वेरिएबल की पावर जब 2 होती है, पॉलिनोमियल जब वेरिएबल की पावर 3 होती है. ठीक है, तब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. क्लासिफिकेशन कर लेते हैं. फर्स्ट, x² प्लस x, हाईएस्ट पावर 2 है, तो मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेकेंड, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, सो इट इज़ cubic polynomial. This one, second, this one is cubic polynomial. Here highest power 2 है, so this one is quadratic polynomial. Highest power 3t, power only 1 है, so this is called linear polynomial. Okay, this is called linear polynomial. r² power 2 है, so this is called quadratic polynomial. Okay, r2 है, सो दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 2 है. ठीक है, एंड 7x³ पावर 3 है, सो दिस इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. पावर के अकॉर्डिंग नाम दिया है. 1 पावर है तो वेरिएबल, हाईएस्ट पावर की बात हो रही है. 1 है तो लीनियर, 2 है तो पावर क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल. नाउ गो फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2. अब 2.2 में क्या करना है आपको, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, जस्ट लाइक हियर सी. पॉलिनोमियल ये आपको दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3, मीन्स वेरिएबल x है, तो आपको वैल्यू निकालनी है. x⁴ 0 रखिए तो वैल्यू निकालिए, -1 रखिए, फिर 2 रखिए. तो वेयर एवर यू आर सीइंग x, यू हैव टू इन फर्स्ट पार्ट पुटिंग 0. जहाँ जहाँ x है हम 0 पुट कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, 5x मल्टीप्लाई में है, 5 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0, यहाँ पे भी x की जगह 0 आ गया तो 0 से होगी 0. दिस टर्म इज़ 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 0 कहलाएगा. ओके, क्या कहलाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 0 से हो रही है तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये नंबर भी यहाँ पे
ज़ीरो हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? किसी की मल्टीप्लाई ज़ीरो से होती है तो वो ज़ीरो कहलाता है, ठीक। तो 4 की मल्टीप्लाई से होगी ज़ीरो, यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे। एंड देन फिर 3 एज इट इज़ है तो 0 में 3 प्लस होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। कितना आएगा इसका आंसर? 3 आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट में वी आर पुटिंग -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -1 पुट कर रहे हैं। तो 5 की पावर वैल्यू मल्टीप्लाई से होगी तो 5 1 5 -5 -4 -1 की पावर स्क्वायर है तो यानी -1 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, तो -1 की पावर कितना आ गया? स्क्वायर 1 सॉल्व होगा तो 4 1 जा 4 एंड 3 एज इट इज़। अब -1 -4 + 3 तो -5 -4 9 और +3 और 9 में से 6 जाएंगे, -6 इज़ द आंसर। तो p -1 की वैल्यू हो गई -6। ओके। नाउ थर्ड में वी हैव टू पुट x टू द वैल्यू 2, तो जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दीजिए, 2 2 2, तो 5 2 ज़ा 10, 2 की पावर 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 2 मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम होगी, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 3 एज इट इज़, 10 एज इट इज़, 4 4 16 माइनस एंड देन 3। सो प्लस प्लस एक साथ ले लेते हैं पहले, 10 + 3 13 एंड -16 और 16 में से 13 जाएगा, आंसर आएगा आपका -3। तो p टू द वैल्यू -3 आ गई इस पॉलिनोमियल की। ओके। नाउ नेक्स्ट इज सी सेकेंड, फाइंड p0। p0 का मतलब पॉलिनोमियल को आप px दे देते हैं क्योंकि x में है, py नाम दे सकते हैं अगर y की वेरिएबल में हुआ तो। ओके, ये हम लिख रहे हैं। एंड देन फाइंड p0। p0 की वैल्यू लिखनी है, p1 और p2 की वैल्यू निकालनी है हर एक पॉलिनोमियल के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब पॉलिनोमियल चेंज हो गया, वैल्यूज़ अलग अलग निकालनी है, तो सिंपल है। ये पॉलिनोमियल y की फॉर्म में है तो इसको py नाम दे दिया। ओके, तो अब p0 यानी y की जगह 0 पुट करना है, p1 यानी y की जगह 1, p2 यानी y की जगह हर जगह यहाँ पे 2 2 पुट करना है। ओके, और इनको आप सॉल्यूट कर लेंगे। सॉल्यूशन तो सभी को पता है कैसे होते हैं, नॉर्मली सॉल्व करना है आपको। pt जहाँ पर t है, p0 की वैल्यू निकालने के लिए पहले t की जगह 0, फिर t की जगह 1 एंड फिर t की जगह 2 पुट करना है। यहाँ पर जहाँ x है इस पॉलिनोमियल में, 0 पे वैल्यू निकालनी है तो 0 पुट करेंगे, 1 पे निकालनी है तो 1 एंड 2 पे निकालनी है तो 2 पुट कर रहे हैं। हियर ऑल्सो वी आर पुटिंग, जहाँ पे x p0 निकालना है तो 1 और p1 निकालना है, p0 निकालना है तो 0, p1 निकालना है तो 1 और p2 निकालना है तो x की जगह 2 पुट कर रहे हैं और ईज़िली सॉल्व कर रहे हैं। जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो रहा है जैसे आप सॉल्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द। ज़ीरोज़ मीन्स पॉलिनोमियल सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल सॉल्व करने के बाद किसी भी पॉलिनोमियल में आपने वेरिएबल की कोई वैल्यू रखी और वो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर अगर 0 आ गया तो जो वैल्यू आपने पुट की होगी वो ज़ीरोज़ हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। ज़ीरो का मीन्स होता है उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। वही सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल कोई भी कंडीशन, अच्छा आप जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं 8 को, 2 कंप्लीट इस टाइप से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि 2 जो है उसने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया 8 को और 2 एक सॉल्यूशन बन गया 8 का कि ये इसको डिवाइड कर सकता है। ओके, तो 2 ज़ीरोज़ कहलाएगा इस 8 का। क्या कहलाएगा? 2 ज़ीरोज़ कहलाएगा 8 का। ऐसे ही जो भी वैल्यू पॉलिनोमियल का आंसर 0 लेके आ जाती है वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड करा रखी हैं, पुट करनी है। पॉलिनोमियल ये है, x की वैल्यू -1/3 रखेंगे आप तो आंसर कितना आएगा? हमने जहाँ x था वहाँ -1/3 रखा, मल्टीप्लाई में 3 to 3 कैंसिल, -1 बच गया इधर और इधर 1 आ गया केवल। ओके, तो -1 + 1 0 हो गया। यस, ये जो वैल्यू थी वो पॉलिनोमियल का आंसर 0 ले आई, इसलिए हम कह सकते हैं यस -1/3 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द
पॉलिनोमियल। ओके, ऐसे ही आपको जो भी x की वैल्यू दी है वो अपने एक्सप्रेशन में पुट करनी है। 5 मल्टीप्लाई 4/5, 5 to 5 कैंसिल, 4 बचा, 4 माइनस पाई। इसने तो ज़ीरो नहीं दिया पॉलिनोमियल, तो नो 4/9 इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सप्रेशन में दो वैल्यूज़ रखनी है, पहले 1 रखिए फिर -1। 1 रखने पर 0 आ रहा है, -1 रखने पर भी x की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। जो पॉलिनोमियल का आंसर 0 कर देता है वही वैल्यू आपका क्या कहलाती है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, पहले -1 रखी फिर 2 रखी, दोनों में 0 हो रहा है, यस, तो दोनों ही ज़ीरोज़ कहलाएंगे इस पॉलिनोमियल के। ऐसे x टू द वैल्यू 0 है तो ये भी 0 है। नाउ हियर x की वैल्यू -1/L पुट करनी है, तो -1/L आपने x की जगह पुट करी, x की जगह पुट करने हैं, वेरिएबल की जगह, ठीक है। L to L कैंसिल, तो -m + m बचा, और ये एक दूसरे में कैंसिल हो जाएगा तो 0 आएगा। यस, x की वैल्यू -m/L इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट 7। हियर ऑल्सो वी आर पुटिंग गिवन टू वैल्यूज़, -1/√3 पुट किया हमने। अब इधर देखेंगे -1 माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस में आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर जब होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, एंड देन ओनली 3, तो 3 to 3 कैंसिल, और खाली यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और 1 - 1 0। ओके, तो ये इसने इसकी वैल्यू 0 कर दी, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। सेकंड को अगर चेक करें तो 2/3, 2 का स्क्वायर 2 2 4, और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो खाली 3, 3 to 3 कैंसिल, 4 - 1 3, तो मीन्स ये वैल्यू तो ज़ीरोज़ है बट ये वैल्यू ज़ीरोज़ नहीं है। ओके, बिकॉज इट नॉट गिवन एक्सप्रेशन 0। नाउ नेक्स्ट x टू दी वैल्यू 1/2 लेके लिखनी है, तो 2 से 2 कैंसिल, और 1 + 1 कितना आ गया, हियर यहाँ पर 1 + 1 2 आएगा आपका, ठीक है, इसको करेक्शन में लाएंगे, 1 + 1 2 आ गया, तो हम कह सकते हैं नो, x इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका ज़ीरो नहीं होगा। ओके, 1 + 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो नो x इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये आपके पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। क्लियर वन, देख लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, 4 में क्या निकालना है आपको, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ज़ीरो निकालना है कि किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो सकता है, वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है कि किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो सकता है, तो जो एक सिंपल सी ट्रिक है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है उसको इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए, जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको इक्वल टू ज़ीरो। एक इक्वेशन कब सॉल्व हो जाती है, जब उसके इक्वल टू ज़ीरो रख दें, तो उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आ जाती है, उस वेरिएबल की जो वैल्यू आ जाती है, दैट मीन्स वो वैल्यू अगर हम x की जगह फिर से पुट करते हैं तो वो आंसर 0 मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही x + y 5 को अगर 0 की इक्वल रखेंगे तो ये +5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा, तो x टू दी वैल्यू -5 आ गई। मीन्स अगर आप x की जगह -5 पुट करते हैं वेरिएबल में, इक्वेशन क्या थी x + 5, x की जगह -5 पुट करेंगे तो -5 में +5 आंसर 0 दे देगा, सॉल्यूशन 0 आ गया। इसका मतलब x टू दी वैल्यू -5 इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्या है इस पॉलिनोमियल का, 0 है, ठीक। जो भी इक्वेशन दी है उसको 0 के इक्वल रख दीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी जो भी वेरिएबल होगा, और वो वेरिएबल 0 कहलाएगा। x -5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस आएगा, +5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज़ इक्वल टू 5। 2x + 5 +5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, एंड देन x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, और ये फिर 5 -5 के साथ डिवाइड में जाएगा, तो वैल्यू क्या आई, -5/2, मीन्स -5/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है 3x - 2, 3x - 2 -2 इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई है इधर,
तो डिवाइड में जाएगा, मीन्स 2/3. 2/3 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, पहले चेक करना था और अब आपको डायरेक्ट निकालना है वैल्यू क्या होगी. क्लियर. नेक्स्ट 3x 0 कर दिया, 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 0 के साथ डिवाइड में जाएगा. और 0 को तो किसी से भी डिवाइड करो, 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, बट 0 को किसी से डिवाइड करो तो आंसर 0 आता है. ओके, सो x टू द पावर वैल्यू 0, तो 0 इज़ द ज़ीरो. 0 इज़ द ज़ीरो का मतलब सॉल्यूशन. 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ax इज इक्वल टू 0, तो a मल्टीप्लाई में है, ये 0/a बनेगा, यानी वैल्यू आपकी 0 आ गई. क्लियर है. तो 0 इज़ द 0x. ओके, 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. 0 यानी सॉल्यूशन. 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द, क्योंकि हम सॉल्यूशन को ज़ीरोज़ भी बोल देते हैं. हियर cx प्लस डी इज इक्वल टू 0. प्लस जी इधर जाके माइनस में आ जाएगा और c मल्टीप्लाई में ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी. हियर माइनस डी अपॉन सी इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, जब भी ज़ीरोज़ निकालने होते हैं तो आंसर इज इक्वल टू, चेक करना है तो पुट कीजिए वैल्यू जो x की दी है, आंसर 0 होना चाहिए. और अगर निकालना है कि कौन सी वैल्यू पे ये 0 होगा, तो वो वैल्यू निकालने के लिए जो भी वेरिएबल है, जो भी आपका पॉलिनोमियल है, उसकी इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए. ओके, देन यू कैन फाइंड द 0 सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, नाउ हियर वी हैव completed exercise 2.1, 2.2. Watch this video carefully and then tell me your response, tell me your doubts. We are doing the effort to make this problem easy for understanding. Now if you are like it, then subscribe also, क्योंकि न्यू वीडियोज़ आएंगी तो बार बार आपको मिलती रहें, आप अपना रिवीजन करते रहें. क्लियर. टेक केयर.